Hello everyone, Radhe Radhe. So we have done class 4th first chapter, that was plants are green friends. Today we will start with second chapter, that is adaptation in plants. Okay, so there are learning objectives given, means what we will learn in this chapter, that is given here. Their main points are given here. They are saying that we identify different habitats and their features. It will explain how different plants are adapted to their habitats. To classify terrestrial plants based on their adaptations to their habitats. Terrestrial plants को हम classify करेंगे. To classify aquatic plants based on their adaptations to their habitats. To list the feature of insectivorous plants. ठीक है, ये सब given है यहाँ पे. Okay, now let's start. So this is the chapter, and this syllabus is included in RAN International School in all over in India. Okay, in all branches of RAN school. So first topic is habitats and adaptations. So what is habitat? Habitat is like a special neighborhood for plants and animals. जैसे हमारे neighborhood होते हैं, ऐसे habitat जो है वो एक special neighborhood है plants और animals का. और ठीक है, neighborhood मतलब पास का एरिया. और habitat can be forest, a pond, a desert, even a backyard garden. ठीक है, हैबिटेट कुछ भी हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, और इवन और बैकयार्ड गार्डन भी हो सकता है. इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिजम्स विद ऑल द थिंग्स दे नीड टू सर्वाइव. वो एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को सारी चीज़ें मिलती हैं जितनी भी उसको सर्वाइव करने के लिए चाहिए, लाइक फूड, वाटर, शेल्टर. ठीक है, ये तो हो गया हैबिटेट, स्पेशल नेबरहुड को बोलेंगे. नेक्स्ट है एडेप्टेशन. Adaptation refers to the state where animals or plants become better suited to their environment. Adaptation वो होता है, वो state होता है, वो condition है हमारी नहीं, animals और plants की, जिसमें वो better feel करता है, better suited to their environment. ठीक है, अपने environment के हिसाब से अपने आप को वो ढाल ले, अपने आप को according to he can stay there like animals or plants. So that is called adaptation. The plants have different physical features that help them adapt to conditions in their habitats. Plants have different physical features. You know very well. Plants, सभी plants के अपने अपने physical features हैं और उनकी वजह से वो अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं. अडेप्ट कर मतलब वहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट अपने उन फीचर्स की वजह से वहाँ पे जो भी कंडीशंस हैं, ठीक है, अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं उन एरियाज़ में, उन हैबिटेट्स में. ठीक है, अडेप्ट करना मतलब अपने आप को सर्वाइव कर पाना. नेक्स्ट टॉपिक है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड एंड कंटेन न्यूट्रिएंट्स, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स. वो वाले प्लांट्स होते हैं जो किसी लैंड पे ग्रो होते हैं. वो प्लांट्स हैं जो लैंड पे ग्रो हुए, वहीं से न्यूट्रिएंट्स और वाटर लिया फ्रॉम दैट सोइल, एंड दे कैन बी फाउंड इन प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, कोस्ट लाइन्स एंड मार्शी एरियाज़. और ये वाले प्लांट्स कहाँ मिलेंगे? प्लेन्स में, माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, कोस्ट लाइन्स में, मार्शी एरियाज़ में. ओके, सो दीज आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स फाउंड इन where these plants found in. terrestrial plants कहाँ मिलते हैं? As it is given here, plains में, mountains, deserts, coastlines and marsh areas. So they are explaining first topic, that is plains. तो plants found in plains we will study in dry plains, मतलब plain area, like हमारी ज़मीन है जहाँ पे हम रहते हैं, जो states हमारे सारे, तो वो plain area में हैं. In dry hot summers, cold winters on plains. In dry hot summers, cold winters on plains, certain plants grow with many branches. Their green leaves turn yellow, fall off in winter to shield against the cold. ठीक है, वो ये सारे काम होते हैं सीजन के अकॉर्डिंग टू द सीजन, कि ग्रीन लीव्स जो होंगे वो येलो टर्न हो जाएंगे, येलो में चेंज हो जाएंगे, फिर फॉल ऑफ गिरेंगे विंटर्स में, टू शील्ड अगेंस्ट द कोल्ड्स, अपने आप को शील्ड करने के लिए, कवर अप करने के लिए, कोल्ड से बचाने के लिए. दीज आर कोल्ड डेसिडियस ट्रीज. ओके, ऐसे ट्रीज़ को क्या बोलेंगे? डेसिडियस ट्रीज़. ट्री में सारा ये सब वर्कआउट होता है. सम एग्जांपल्स ऑफ सच ट्रीज इंक्लूड नीम होते हैं, पीपल होता है, गुलमोहर होता है, एंड बनियन ट्री. दीज ऑल ट्रीज आर डेसिडियस ट्रीज. सबसे एक यहाँ पे फैक्टोपीडिया मीन्स जो काम किया, जो एक फैक्ट वाला जो नॉलेजेबल थिंग है, दैट इज बैम्बू इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन द प्लानट. बैम्बू सबसे तेज़ी से उगने वाला प्लांट है प्लानट पे. टॉल थिन प्लांट होता है और ये अप टू 0.9 मीटर एवरी डे इंक्रीज़ होता है. इसकी हाइट 0.9 मीटर एवरी डे बढ़ता है. ये है बनियन ट्री. ठीक है, और ये है गुलमोहर ट्री, और बनियन ट्री और बैम्बू ट्री यहाँ पे गिवन नहीं है. सो प्लांट्स. अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स फाउंड इन माउंटेन्स.
प्लेन्स का उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, प्लेन्स में कैसे प्लांट्स होते हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स फाउंड इन माउंटेन्स। प्लांट्स फाउंड इन माउंटेन्स नीड टू अडेप्ट टू हार्श माउंटेन कंडीशन टू सर्वाइव। उनको हार्श माउंटेन कंडीशंस में भी अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। दीज प्लांट ग्रो इन, ठीक है, हार्श माउंटेन कंडीशन होती है, मतलब कि वेदर ज़्यादा ही ठंडा हो जाता कई बार वहाँ पे। दीज प्लांट्स ग्रो इन द हायर एल्टीट्यूड्स विद लेस ऑक्सीजन। और जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वहाँ पे ऑल्टीट्यूड तो ज़्यादा है, मीन्स हाइट ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। दे हैव स्पेशल अडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन दिस कोल्ड। और उनकी अपने खुद की खासियत है, खुद भी अडेप्टेशन है उसमें कि नीडल लाइक लीव्स होते हैं, उनके टॉल ट्रंक्स होती हैं, पतली पतली ट्रंक होती है, लंबी ट्रंक होती हैं और पतली पतली नीडल लाइक उसके पत्ते होते हैं। टू स्टे रूटेड, और रूटेड रहने के लिए मतलब जड़ से जुड़ा रहने के लिए, गिरे ना। तो माउंटेन प्लांट्स ऑफन हैव स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूट्स, उनकी स्ट्रॉन्ग डीप रूट्स होती हैं। दे डू नॉट बियर फ्लावर्स, उन पे फ्लावर्स नहीं आते, बस उन पे कॉन्स जरूर आते हैं। देर आल्सो कॉल्ड कॉनिफर एंड कॉनिफरस ट्रीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सम एग्जांपल्स ऑफ माउंटेन प्लांट्स। देखो कुछ माउंटेन प्लांट्स यहाँ पे दिखा रखे हैं, पाइन, केदार और देवदार। ठीक है, ये केदार के हैं और यहाँ पे ये पाइन ट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट रीजन्स। ठीक है, डेजर्ट रीजन में कैक्टस का मिलेगा। देखो एक कैक्टस का प्लांट है। इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स प्लांट्स अडेप्ट टू सेव वाटर, प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कि वाटर सेव हो जाए। दे ग्रो डीप रूट्स इन डीप रूट्स टू रीच, उनकी रूट्स डीप होती हैं टू रीच अंडरग्राउंड वाटर, कि वो अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाती है उनकी रूट्स, ताकि पानी की कमी हो तो वहाँ से सीधा डायरेक्ट ले लें। लीव्स आर रेड्यूस टू स्पाइन्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। जो यहाँ पे डेजर्ट के प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स की फॉर्म में है। स्पाइन्स मतलब बहुत ही पतली पतली। दे प्रिवेंट वाटर लॉस, उसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होता, प्रिवेंट मतलब बच जाता है। सर्टेन प्लांट्स लाइक कैक्टाई, डेजर्ट मैरीगोल्ड्स स्टोर वाटर इन द स्टेम। इन जो प्लांट्स होते हैं कैक्टाई और डेजर्ट मैरीगोल्ड, इनमें इनकी स्टेम में वाटर स्टोर होता है, इसीलिए बच पाते हैं फॉर सर्वाइवल ड्यूरिंग द लॉन्ग ड्राई स्पेल्स। लॉन्ग ड्राई स्पेल्स से मतलब ज़्यादा ही गर्मी होती है तो ये सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, उनकी स्टेम में वाटर स्टोर होता है। एग्जाम्पल होगा कैक्टस एंड सेकेंड एग्जाम्पल होगा डेजर्ट मैरीगोल्ड। ये डेजर्ट मैरीगोल्ड है। ओके, नेक्स्ट है प्लांट्स फाउंड इन कोस्टल एरियाज। तो प्लांट्स फाउंड इन कोस्टल एरियाज में क्या है, तो प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज अडेप्ट टू हैंडल एक्सेस वाटर। उनको एक्सेस वाटर जो है कोस्टल एरियाज में ज़्यादा पानी होता है समुद्र के किनारे, तो वहाँ पे एक्सेस वाटर कैसे हैंडल करना है वो उनको आता है। दे ऑफन हैव बिग लीव्स टू कैप्चर, उनके लीव्स कैप्चर बिग होते हैं। दे नो दैट टू कैप्चर सनलाइट, ज़्यादा सनलाइट कैप्चर करते हैं। सम हैव ड्रिप टिप्स ऑन देयर लीव्स टू शेड एक्स्ट्रा रेन वाटर। कई बार जब उनके ज़्यादा बारिश होती है तो उनकी जो उनके लीव्स हैं, उन लीव्स की जो टिप है वहाँ से पानी अपने आप ऑटोमेटिकली फॉल हो जाता है। ठीक है, दे हैव ड्रिप टिप्स मतलब वहाँ पे जो उनकी टिप है वो टपकती रहती है। ट्रीज इन द कोस्टल एरियाज हैव स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टेम टू विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। उनकी स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टेम होती है ताकि वो मुड़ जाते हैं लेकिन टूटते नहीं है। स्ट्रॉन्ग विंड्स आए तो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और नेक्स्ट थिंग है द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज ग्रो डीपर इनटू द सैंडी सॉइल। इनकी जो रूट्स होती है वो डीपर होती है सॉइल में, सैंडी सॉइल होती है वहाँ पे। ठीक है, अब आके देखिए कोस्टल एरिया प्लांट्स स्टे ग्रीन ईयर अराउंड, पूरे साल तक ऑलमोस्ट ग्रीन रहता है कोस्टल एरिया के प्लांट्स, नोन एज एवरग्रीन प्लांट्स। सम एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कोकोनट, बीटल पाम, रबड़। द अडेप्टेशन ऑफ नीडल शेप्ड लीव्स इन पाम एंड कोकोनट ट्री। जो उनकी जो नीडल शेप लीव्स होते हैं, इनकी जो नीडल शेप लीव्स होते हैं, ये इनकी सुई जैसी शेप होती है लास्ट कॉर्नर में, ये इंपॉर्टेंट सर्वाइवल मैकेनिज्म, इसकी वजह से वो बच पाते हैं वहाँ पे। दे हेल्प देम थ्राइव इन द एनवायरनमेंट। द सीड्स ऑफ द कोस्टल एरियाज प्लांट्स आर डिस्पर्स टू फार अवे प्लेसेस बाय द वाटर की वजह से जो सीड्स हैं आए हैं प्लांट्स में कोस्टल एरियाज पे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे दूर दूर तक, फार अवे प्लेसेस तक। ठीक है, तो ये थे यहाँ तक के प्लांट्स के बारे में। आगे एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।